Good morning, students. Welcome back to our next lecture of 10th Biology Control and Coordination. In the previous lecture, we have learnt about all the different plant hormones, all the different functions of the plant hormones, how the auxin act on the plant. And today, let us wind up with this topic with the functions of the plant hormone. And this hormone help in germination of seed. The most important part of this hormone is for the germination of seed. Next is the growth of root, shoot, stem system, root system, and leaves also. These hormones helps in the growth of root, stems, and leaves. The next function of the plant hormone is the movement of stomata. Movement of stomata. It helps in the movement of stomata. Then flowering of plants. Flowering of plant is also done with the help of the hormone. Next is ripening of fruit. ये जो फ्रूट पकते हैं वो भी किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स. नेक्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, chemotropism, hydrotropism, thigmotropism. All these are nestic movements, as we have learnt in our previous lecture about the nestic movements. All different nestic movements is possible only because of plant hormones. So here we finishes up with the plant hormone. Come on to the coordination in animals. Now the next important topic of control and coordination is coordination in animals. So in multicellular animals, they have a specialized cells called the nerve cells. So important part is nerve cells. Multicellular organisms have a nerve cell, right? The coordination in the multicellular animal takes place through the nervous system. For example, if we take an example of Hydra, as you know कि Hydra is a simple multicellular animal, and the nervous system of Hydra consists of a network of nerve cells joined to one another and spread throughout the body. So we can say the control and coordination in higher animals called vertebrates. So here we are discussing about vertebrates having a backbone. It means human beings are also involved. Human beings are also involved in this vertebrates. So take place through the nervous system as well as the hormonal system called the endocrine system. The system in which both nervous system and hormonal system, both of them combines to form एंडोक्राइन सिस्टम. इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. और एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ पर है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स में. वर्टिब्रेट्स मीन्स ह्यूमन बींग्स, मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर आते हैं. ठीक है. अब एक छोटी सी और बात कि वी हैव ए सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. So we receive a variety of information from the environment around us through the sense organs. ये सारे जो information है हमारी बॉडी में किसके थ्रू आती हैं? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आती हैं. तो जिस पार्ट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर. So a receptor is a cell or a group of cell in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimuli. जैसे कि हम बात कर सकते हैं लाइट है, साउंड है ना, हीट, टेस्ट, प्रेशर. तो डिफरेंट सेंस ऑर्गन कंटेन अ रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलाई. हमारे सेंस ऑर्गन के पास अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं. वो अलग अलग स्टिमुलाई को कैप्चर करते हैं. स्टिमुलाई को कैप्चर करते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ. हमारी आईज़ हैं, ठीक है. तो आईज़ हैव अ लाइट रिसेप्टर.
हमारी आँखों के पास लाइट रिसेप्टर है, ठीक है, जिसका मतलब कि है वो लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। हमारी आँखें वहाँ जाती हैं, उस चीज़ को देखती है जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है। एंड अगर बात की जाए तो ईयर्स की बात करते हैं, तो ईयर्स हैव अ साउंड रिसेप्टर्स। ईयर्स को हम क्या कहते हैं? साउंड रिसेप्टर, जो क्या डिटेक्ट करते हैं? साउंड डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्मेल रिसेप्टर्स। स्मेल रिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं? स्मेल, है ना। बहुत अच्छी कोई खाने की चीज़ बनती है तो नोज़ को पता चलता है, हमें खुशबू आती है, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्मेल रिसेप्टर्स, बिकॉज ऑफ द नोज विच इज़ नोन एज द सेंस ऑर्गन विच इज़ लिंक्ड विद द endocrine system and which is in turn linked with our nerve cells and hormonal system. So this is all complete present in the coordination in animals, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है जिसके अंदर टंग हैज़ अ टेस्ट रिसेप्टर। टंग के पास टेस्ट का रिसेप्टर होता है विच कैन डिटेक्ट द टेस्ट, जो टेस्ट को बताता है, राइट। इसी तरह अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, और जो कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं उनके स्पेशल नेम होते हैं, उसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, olfactory receptors, gustatory receptors. These two words are very important. Olfactory receptors, gustatory receptors. Olfactory receptors क्या होते हैं? Which can detect the smell which is related to your nose. Gustatory receptors क्या होते हैं? Gustatory receptors detect the taste which is related to your tongue, ठीक है। और जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में, दे कैन डिटेक्ट हीट और कोल्ड, उसको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। हम सबकी बॉडी में ये सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं ये सारी बातें। हमारी बॉडी बहुत जल्दी सेंस ऑर्गन के थ्रू, हम सबकी बॉडी, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबकी बॉडी रिसेप्टर्स के थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू, इन सब बातों का हमें रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलाई देती है। और स्टिमुलाई क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। स्टिमुलाई को क्या कहते हैं? ये एक प्रकार की एनर्जी है, जैसे कि हम कह सकते हैं लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, इस तरह की एनर्जी है। तो ऑल द रिसेप्टर्स in the sense organ receive stimuli from the surrounding environment and send the message conveyed by them to the spinal cord. अब यहाँ पे जो इनके पास जो मैसेज आता है, वो यहाँ से सीधा मैसेज किसको पास करती है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पास हो जाता है एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को भी करती हैं, ब्रेन को भी पास करती है, इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसको हम कहते हैं इम्पल्सेस के रूप में मैसेज पास होता है। किसके द्वारा होता है? थ्रू द सेंसरी नर्व्स। तो आपको ये सारी बातें बताने का पर्पस यही था कि रिसेप्टर्स हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सब कुछ रिसीव करते हैं, और वो बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। स्मेल है, टेस्ट है, ठीक है, हमारी आँखें हैं, नोज़ है, टंग है, स्किन है, सेंस ऑर्गन से रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को भेजा जाता है मैसेज, और किसके रूप में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? सेंसरी नर्व्स के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ आज हमने सिंपल एक मोटा सा प्रोसेस समझा है कि ये चीज़ होती क्या है एनिमल्स में। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इट इन detail कि how the human nervous system works, and today's your work is to draw the diagram of the function of the auxins on the plant that I have discussed earlier and shown you in my video also, in the previous lecture also, as you can see very well, the diagram explaining the bending of the plant stem towards the light by the action of auxin hormone. ये वाला diagram ज़रूर होना चाहिए आपकी notebook में।
एंड अलॉन्ग विद दैट जो आज मैंने डिस्कस किया है इसके आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएंगे. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ एंड वेरी सून योर नोटबुक चेकिंग इज़ टू बी डन बाय मी थ्रू सॉफ्ट कॉपी. तो बेटर है कि आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लें, राइट? एंड वील मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.